আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। বাংলার ক্যারাটে খেলোয়াড়রা বিশ্বের দরবারে বাংলার নাম উজ্জ্বল করেছে মালয়েশিয়ান 14তম সাইলেন্ট নাইট ক্যারাটে কম্পিটিশন 2025। মালয়েশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের অনুমতিতে আয়োজিত হলো এই টুর্নামেন্ট টিটি ওয়ানসা স্টেডিয়ামে। মালয়েশিয়া অলিম্পিকের মহাসচিব জনাব নাসির আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন হানসি প্রেমজিৎ সেন। ফেডারেশনের সভাপতি দাতু ভুইয়া এছাড়াও ছিলেন আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ভারতীয় প্লেয়াররা আন্তর্জাতিক মানে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করে 42টি পদক জেতে বাংলার শিবম পোদ্দার স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আশিকা ঘোষ সিনিয়র মহিলাদের ভিতরে খুবই ভালো কৃতিত্বময়ী খেলা দেখিয়েছেন। ভারতীয় ক্যারাটের দলের এই মূল সাফল্যর পিছনে ছিলেন কোচ হানসি প্রেমজিৎ সেন। সহকারী কোচ হিসেবে ছিলেন সেনজিং শাহবাজ খান। 14th Silent Night International Karate Championship. It is one of the biggest, prestigious karate event in Asian level, because in this championship you will get lots of Asian medalists, Asian Games medalists, and ये टूर्नामेंट में हम लोग का बंगाल का कई सारे बच्चे लोग गए थे, and the most remarkable परफॉर्मेंस सीनियर में अगर कोई मेडल ले आता है, that is something very remarkable, and इसमें शिवम पोद्दार जो गोल्ड लेके आया है और विशिका घोष जो सिल्वर मेडल लेके आया है। रिमार्केबल इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज मलेशिया इज अ हब ऑफ इंटरनेशनल कराटे। यहाँ पे इतना अच्छा प्लेयर सीनियर लेवल में है, मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस। जैसे ओइशिका घोष सेमीफाइनल में मलेशियन नेशनल गेम्स चैंपियन, मलेशियन कराटे चैंपियन उसको हराया है। इज नॉट एन इजी जॉब, शी वॉज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बेस्ट, बट स्टिल आवर प्लेयर कैन डू एनीथिंग बिकॉज हिंदुस्तान कैन डू एनीथिंग। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। और स्पेशली इन सीनियर लेवल शिवम पोद्दार done an excellent job with Malaysia, Singapore, and especially in the final it was India versus India, and India का कई नामचीन प्लेयर है, 7 बार वो मेडलिस्ट है, साउथ एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट है, but luck was not there with him, luck was with Shivam Poddar and he got the gold medal, so it's a unique achievement। और हम चाहते हैं कि मलेशिया के कराटे चैंपियनशिप में और भी बच्चे हम लोग का नेक्स्ट टाइम जाए और अच्छा রেজাল্ট करके आए। সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আর সব থেকে বড় কথা, আমরা দুজন স্টেজে বসেছিলাম। আমরা যেহেতু অফিসিয়ালস, আমরা বেশি নিজেরা দেখাতে পারি না, তো তবুও এত বেশি ভালো লাগছিল যে আমাদের শিবম পোদ্দার এবং ঐশিকী ঘোষ এত দুর্দান্ত করে। ঐশিকী ঘোষ তো ব্যাড লাগাটা হতেই পারে স্পোর্টসে, ফাইনালে সুন্দরভাবে ফাইনালে উঠে ফাইনালটা একটুর জন্য কভার করতে পারিনি, বাট শিবম দুটো মানে বেস্ট ফাইট এমনভাবে জিতেছে যে নিজেরা প্রচণ্ডভাবে গর্বিত অনুভব করছিলাম যে হ্যাঁ, এরকম ছেলেমেয়েরা যে এখানে আসছে, অতএব এরা যে এখানে এক্সপোজটা পাচ্ছে এটা ভীষণভাবে দরকার। এবং স্পেশালি হানসিও বললেন যে শ্রীলঙ্কা এবং মালয়েশিয়া এই দুটো খুব টাফ ফাইট ছিল, সে দুটো টাফ ফাইট এত সুন্দরভাবে টাফটাকে এত ইজি করে জিতেছে। এটা হচ্ছে সব থেকে প্লেয়ারদের বড় গুণ, এবং ভালো প্লেয়ার হতে গেলে যে গুণটা দরকার সেটা ওর মধ্যে আছে, এবং সেটা আমাদেরকে গর্বিত বোধ করেছে, আমাদের বাংলাকে, আমাদের ইন্ডিয়ান কারাটেকে। এবং আমরা আশা করবো যে ঐশিকী এবং শিবম আরও অনেক বড় জায়গাতেই যাবে, আমরা সেই আশায় বসে আছি। আমাদের সাব জুনিয়র বাচ্চাগুলো খুব ভালো প্র্যাকটিস করেছে এবং ভালো পারফর্ম করেছে, যেমন ইভান নন্দী, দেবাস ঘোষ, তারপরে আপনার কি ঝাড়ে শ্রেয়াস ঝা, কৌশিকী ঘোষ, এরা প্রত্যেকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। এবং আরও কিছু বাচ্চা আছে যেমন সিলভিনা সাহা, রূপসা ঘটক, পৃথ্বীষা দে, অ্যানি দে, প্লাস হচ্ছে জয়জিৎ মণ্ডল এবং আয়ুষ্মান, এরা খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। শ্রেষ্মান ওরা খুবই ভালো রেজাল্ট করেছে। ওরা খুব উঠতি ছেলে, খুব 7 বছর, 8 বছর, 10 বছর বয়স। বাট যেটা আমাদের কাছে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমাদের সিনিয়র লেভেল, যেটা খুব টাফ লেভেল হয় আর কি, যেটা এশিয়ান লেভেল। এখন কারাটেতে এশিয়ান লেভেলে একটা বিশাল জায়গাতে আছে, তো সেই এশিয়ান লেভেলের ছেলেদের হারিয়ে এসছে এবং মেয়েদের হারিয়ে এসছে, এটা আমরা খুব গর্ববোধ করছি। शिवम, इतना बड़ा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप गए थे, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ बिफोर द टूर्नामेंट, मतलब वहाँ जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, डर भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था।
और इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो भी इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि मलेशिया, जैसे हांसी ने भी बताया, मलेशिया कराटे का हब है एशियन लेवल पे। वहाँ पे जिन्होंने ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था, सेंसी अरिवलंगन, उनके ही कई बहुत सारे एशियन गेम्स मेडलिस्ट, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट प्लेयर, नेशनल मलेशियन नेशनल चैंपियन प्लेयर्स जो है मेरे कैटेगरी में भी थे, और भी बहुत सारे कैटेगरी में थे। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे वहाँ पे, और ऐसे लेवल पे फर्स्ट टाइम खेलना इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है। लेकिन नर्वसनेस था, उसके साथ कॉन्फिडेंट भी था, खुद के ऊपर नहीं, अपने गुरु के ऊपर, हांसी के ऊपर, कि उन्होंने जो सिखाया है, वो जैसे प्रिपेयर करवा रहे हैं, जैसे प्रिपेयर उन्होंने करवाया है पहले, उसको कोई नहीं आ सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन हांसी ने जो सिखाया उसको रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि और इवन बिफोर माई मैच, मेरा मैच जो था, सबसे मेरे मैच में कैटेगरी में सबसे फर्स्ट फाइट ही मेरा था। और जब मेरा मैच स्टार्ट होने वाला था, ठीक से 2 मिनट पहले मैंने देखा कि हांसी इज हैविंग हिज लंच दैट टाइम, और जैसे ही मेरा नेम कॉल आउट हुआ, उन्होंने अपना लंच साइड में रखा और वो सीधा दौड़ के आ गए। जब हम लोग नेशनल्स में भी जाते हैं तो ही इज़ ऑल्सो रेफरी कमीशन चेयरमैन फॉर कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे रूल्स के वजह से वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मैच गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है वो। लेकिन वहाँ पे मलेशिया में भी हांसी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, लेकिन उसके इसलिए हांसी मुझे उस टाइम ड्यूरिंग माय फाइट मुझे सपोर्ट कर पाए, गाइड कर पाए, वो तुरंत मेरे रिंग के सामने आए, मुझे अश्योरेंस दिया कि वो मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो एंड टू स्टार्ट, बिफोर माय मैच, ड्यूरिंग माय मैच, आफ्टर माय मैच, एवरी टाइम तो वो थे। और मैं बस ये बोल नहीं रहा हूँ, मानता हूँ दिल से कि इट वाज हिम ऑन द तातामी, ऑन द मैट, नॉट मी, क्योंकि जितने भी पंच किक्स थे वो मेरे नहीं हो सकते वो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट राउंड मलेशिया के साथ 10-2, सेकेंड राउंड अगेन मलेशिया के साथ 9-5, थर्ड राउंड सिंगापुर अराउंड 6-1, देन फोर्थ राउंड अगेन मलेशिया 8-0, एंड देन फाइनल में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेयर इन माई कैटेगरी, जो 7 टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट है मेरे कैटेगरी में, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, हांसी की वजह से ही मैंने वो मैच जीता 3-1 में। मैं तो खुद भी नहीं सोच सकता कि मैच जीतूंगा, लेकिन डेफिनेटली हांसी की वजह से ही हुआ है जो हुआ। शुभम भाई, इतना बड़ा इंटरनेशनल मैच है, तो यहाँ पे जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए बहुत खर्चा होता है, कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, ये तो बहुत सही बात बताया आपने कि खर्चा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। हर इंटरनेशनल ट्रिप में ही, टूर्नामेंट्स में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं। इस टूर्नामेंट का ही एक्सपेंडिचर अराउंड 75,000 था, मेरा खुद का एक्सपेंडिचर 76,000 समथिंग रुपीज़ था, जो कि डेफिनेटली मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। इससे पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं, मैं जब से हांसी के पास हूँ, 2011 से मैं हांसी के पास हूँ, और 2013-14 से हांसी ने मेरा फीस लेना बंद कर दिया था। और नॉट ओनली फीस, तब से लेके अभी तक मैं जितने टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, उसका ट्रेन फेयर, होटल अकोमोडेशन, फूडिंग, एंट्री फीस, एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ वो देखते हैं। मलेशिया टूर्नामेंट का भी पूरा जो एक्सपेंस है, ये उन्होंने ही देखा था, उनके वजह से ही ये हो पाया। मतलब बोलते वक्त भी मैं लड़खड़ा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई इंसान ऐसे नहीं कर सकते, वो भगवान ही है जो इतना सेल्फलेस होकर के किसी के लिए इतना कर सकते हैं, तो ये उनके वजह से ही पॉसिबल हुआ। हम लोग एज ए रिपोर्टर बहुत जगह जाते हैं, आना जाना करते हैं, बहुत जगह सुनाई मिलता है कि यहाँ पे मैंने सब जगह खाना वाना ठीक नहीं रहता है, सब इंतजाम ठीक नहीं रहता, तो यहाँ पे कैसा था? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, हम लोगों को 3 स्टार होटल में अकोमोडेशन मिला था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों बुफे सिस्टम में था। जिस दिन हम लोगों का इवेंट था, स्टेडियम में हम लोग थे, तो वहाँ पे भी होटल से हमारे लिए लंच आ गया था, क्योंकि हांसी हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं 24/7 एवरी टाइम, कराटे के लिए, अपने स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, तो जहाँ भी रखेंगे वो बेस्ट ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा था, थीम पार्क वगैरह था, वाटर पार्क वगैरह था, सब एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। हम लोग जैसे सुनते हैं विदेश में बहुत अच्छा कोचिंग मिलता है, तो वहाँ पे आप क्या है, बहुत कोचिंग दे, मैंने कोच देखा है, तो क्या फ़र्क मिला है आपको? कोचिंग कुछ वहाँ से सीख मिला, या यहाँ से कुछ क्या मिला है आपको कोचिंग से? नहीं, एज अ प्लेयर सीखने को डेफिनेटली मिलता है, हर मैच में मिलता है, लेकिन कोचिंग में नहीं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया 2011 से मैं हांसी के पास हूँ, तो उन्होंने जैसा अभी तक ट्रेनिंग दिया है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे किसी और की ज़रूरत है, या कहीं और सीखने की ज़रूरत है, इंटरनेट से सीखने की ज़रूरत है, या यूट्यूब से सीखने की ज़रूरत है, कभी नहीं लगा। क्योंकि आफ्टर ऑल उनके ट्रेनिंग के अंडर में ही मैंने सीख करके, और उनके सपोर्ट से ही मैं फॉरेन प्लेयर्स को, मलेशियन प्लेयर्स को, सिंगापुर प्लेयर्स को, इंडिया के टॉप प्लेयर्स को मैंने मलेशिया में जाके हराया है। तो
उनको जरूरत है हांसी का अंडर में ट्रेनिंग लेना, मुझे नहीं। तो एक्चुअली आपने जब आप बोला कि यूट्यूब फेसबुक वगैरह इससे सही में ट्रेनिंग मिलता है क्या? नहीं, एक्चुअली जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, नॉलेज जिनके पास नहीं होता है, वो लोग ऐसे करते हैं यूट्यूब में देखना, लेकिन उसमें देख करके आप कभी एक प्लेयर नहीं बन सकते। वो आप एक और यूट्यूबर बन जाएंगे कुछ व्यूज के साथ, लेकिन कराटे प्लेयर तो आप कभी नहीं बन सकते, प्लेयर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको कोच चाहिए जो आपको गाइड कर सके, ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स में, जिंदगी में भी, जो हांसी हमेशा करते हैं हम लोगों के लिए। क्या तुम অভিজ্ঞতা কেমন? মালয়েশিয়া আমার ফার্স্ট একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ, খুবই একটা ফেনোমেনাল স্টেজ ছিল, যেখানে প্রচুর দেশ থেকে প্লেয়ার এসেছিল, সেখানে আমি সিলভার পাই। বাবা মাকে ছাড়া এতটা দূর ভয় লাগেনি? ইনিশিয়ালি ইয়েস, বাট হানসির মতন একটা ফাদার ফিগার থাকে, মানে যখন আছে সেখানে মা বাবার অভাবটা তিনি বুঝতে দেননি। যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এত মানে বক্সে এত বড় বড় কোচ, বিদেশি কোচরা আছে বসে আছে, সেখানে তোমার কোচের সঙ্গে বিদেশি কোচের কি পার্থক্য তুমি অনুভব করেছো? আমি কোনো পার্থক্য ইনিশিয়ালি পাইনি, কারণ হানসি ইজ দি বেস্ট। হানসি কাছে ট্রেনিং করেছি, হানসির কাছে এতদিন আছি, আমার মনে হয় না যে কোনো বিদেশি কোচের সাথে হানসির তুলনা করা যেতে পারে। না, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা বিদেশি, যেখানে আরো ওদের স্ট্রাকচার অনেক কিছু বা অনেক ওদের ইয়েটা থাকে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে তোমার কোচের সঙ্গে কোনোটা কি তফাৎ পেয়েছো? না, হানসির ট্রেনিং মানে হানসিকে বিশ্বাস করা ইজ লাইক ট্রাস্টিং গড হিমসেলফ। সো দেয়ারফর আই ডিডন্ট ফাইন্ড এনি কাইন্ড অফ ডিফারেন্স ইনিশিয়ালি অ্যাট দ্যাট স্টেজ। দেখতে থাকুন বাংলা এগিয়ে।